Good morning, students. Students, today we'll discuss about the relationship between economic growth and human capital. That human capital, some economists or prominent scholars are of the opinion that human capital formation have a greater impact on economic growth. That means the country who has the better human capital or more human capital will definitely grow more rapidly or will experience a rapid economic growth than the other countries which are having the less quality of human capital or not better quality of human capital. Okay, so we'll find the relationship of human capital and economic growth, whether there is any or not. In the previous lecture, we have discussed about the sources of human capital formation, that what are the major determinants which are helpful in creating or generating or forming the human capital. Okay, so let's start. So first of all, what is economic growth? इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली हम ग्रोथ को जो है प्रोडक्शन या प्रोडक्टिव कैपेसिटी से मेजर करते हैं, से जीडीपी जो हमारा है उसको हम ग्रोथ इंडिकेटर मान के चलते हैं. हम पहले भी डिस्कस किए हैं, जीडीपी इज द ग्रोथ इंडिकेटर ऑफ एनी इकोनॉमी. ओके, एंड जीडीपी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर्स. ओके, जो फाइनल प्रोडक्शन है सभी सेक्टर्स का, उनका कॉम्बिनेशन हमारा, या उस आउटपुट की वैल्यू, तीनों सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर से जितना भी टोटल या फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो हमारी जीडीपी होती है. ओके, एंड प्रोडक्शन के लिए हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, उन्हीं में से एक रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्स भी है. ओके, सो इट इज़ लॉजिकल टू से दैट if the country is having a better human resource or a stock of better human resource, obviously the productivity of the country will be high, and if the productivity is high, the gdp will also increase, and if gdp will increase, its national income or total income of the country will rise. Okay, so logically it sets a relationship. Okay, we can easily observe that there is a relationship between human capital and economic growth. Okay, because if there are skilled personals in the country or with the country, they will contribute more to the growth or development of the nation by increasing the productive capacity of the country. Okay, because they are more skilled and experienced. Okay, they are more able or physically capable to produce anything. That's why the gdp or the productive capacity will be high, and as a result income will also be high. Okay, so economic growth is measured in the terms of uh, uh, national income, or you can say gdp, because national income is calculated with the help of gdp. gdp की help से ही हम national income calculate करते हैं. So whatever we can use कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है दैट इज मेजर्ड इन जीडीपी और नेशनल इनकम. ओके, so if gdp increases or national income increases, the economic growth of the country is observed. Okay, and we have already discussed that if the persons are more skilled and able, or the if the country is having more skilled and able population or physically capable population, obviously their productive capacity will be high. That means they will contribute more to the productive activities. Okay, वो ज़्यादा production करेंगे than the others, those who are not skilled and able, physically able. Okay, so the country which is having less or low literacy rate, and health facilities or medical facilities are not up to date, obviously the human resource or the human beings will not be so much skilled, or they might be not physically well. Okay, it possibly or probably may happen. Okay, ऐसा हो सकता है कि जिस कंट्री की जो लिटरेसी रेट है, मींस एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वहाँ पे बेटर नहीं है, सो लिटरेसी रेट लो होगी. अगर लिटरेसी रेट लो है, दैट मीन्स मोर प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इलिटरेट. ओके, इफ दे आर इलिटरेट, दैट मीन्स बेसिकली दे आर नॉट स्किल्ड. ओके, वो स्किल्ड नहीं है, कुछ स्पेसिफिक स्किल्स उनके पास नहीं है, सो दे विल नॉट जनरेट और इन्वेंट न्यू टेक्नोलॉजी और मैथड ऑफ प्रोडक्शन. ओके, अगर नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नए मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएंगे, सो प्रोडक्टिव कैपेसिटी लो ही रहेगी.
ओके नई टेक्नोलॉजी हमेशा, ये जो न्यू इन्वेंशन या टेक्नोलॉजी है, हमेशा प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री को इंक्रीज करते हैं. Okay, so if the more population or more proportion of the population is skilled or literate, it will be able to create or generate new technology or the methods of production. As a result, the productive capacity will increase. Okay, so basically if we differentiate between the country which is having uh, larger proportion of the population as skilled and literate, and physically capable also, and the other country which is having the less proportion of the population as literate, or the more proportion of the population as illiterate and unhealthy, okay, that country will be able to produce lesser. ओके सो दोनों कंट्रीज ए एंड बी लें या वन एंड टू वट एवर जो भी हम लें, ठीक है, एक डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री की बात करें, एक डेवलप्ड कंट्री जो है अपने जो फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ वट एवर आर दीज, उन पे जो है बहुत ज़्यादा स्पेंड करेगी, उनको इम्प्रूव करेगी या इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी. ओके सो बेसिकली that developed country or nation will be having more literate and skilled personals, okay, or population than the other that is underdeveloped country. Okay, so productive capacity भी developed country की ज़्यादा होगी, that will be more technical intensive. okay, वो ज़्यादा technical intensive होगी, advanced या sophisticated machines उन्होंने generate या produce की होंगी, so basically उनका production ज़्यादा हुआ होगा, obviously उनकी GDP भी ज़्यादा होगी. so हम developed countries और underdeveloped countries को जो है जब कंपेयर करते हैं तो उनकी जीडीपी से ही कंपेयर करते हैं. ओके इफ जीडीपी और द ग्रोथ रेट इज हायर, दैट कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज डेवलप्ड. ओके सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो हम प्रोसेस पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, ओके कि जो अपनी एजुकेशनल ट्रेनिंग एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ओके उनको इम्प्रूव करके अपने ह्यूमन बींग्स को मोर स्किल्ड और मोर लाइक कैपेबल बनाया जा सकता है. ओके सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है मे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द कंट्री. ओके because they help to innovate, they help to create new or better opportunities of production, so the productive capacity increases. As a result, income or national income or obviously per capita income will also increase. okay so जब income increase होगी तो obviously उनका जो standard of living है वो भी improve होगा. okay so we can say that basically कि इन दोनों के बीच एक रिलेशनशिप हम देख सकते हैं या कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप है, बट टेक्निकली ओके बेसिकली हमने देखा जनरली वी मे ऑब्जर्व दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिकॉज the more developed the human capital a country is having or have, the more productive capacity the country will have. okay if the productive capacity is higher, the production will go up. okay production will trigger up, as a result gdp will increase and economic growth can be observed. okay so basically हमने एक रिलेशनशिप देखा, बट क्या टेक्निकली इस रिलेशनशिप को हम मेजर कर सकते हैं या फिर कहीं पे डिफाइन कर सकते हैं? ओके क्या टेक्निकली इस रिलेशनशिप को दिखाया जा सकता है? सो लेट्स सी. टेक्निकली अगर हम इस रिलेशनशिप को देखें तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें सेटअप करना पड़ेगा. ओके दैट मे बी मोर साइंटिफिक. ओके दिस इज अ साइंटिफिक अप्रोच to develop a relationship between the two factors. We need to set a cause and effect relationship. okay that is a scientific approach. okay कि अगर हम किसी भी चीज़ के बीच में या किन्हीं भी दो फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखना होगा या फिर डेवलप करना होगा. okay so let's see whether there is a cause and effect relationship, whether is there a cause and effect relationship between ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट. ओके क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है? दैट मीन्स बेसिकली हमने दोनों को डिफाइन किया है. ओके मीन्स बाइफरकेट किया है कि हम कह रहे हैं ह्यूमन कैपिटल की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ होता है. ओके सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल शुड बी द कॉज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. दैट मीन्स इफेक्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमी ग्रो करेगी अगर ह्यूमन कैपिटल बेटर होगा तो. सो दिस इज द कॉज. हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ह्यूमन कैपिटल इज द कॉज ओके बिहाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके
or is this the single or the sole cause behind the growth of economy? ओके, क्या ये अकेला कारण है इकोनॉमिक ग्रोथ के पीछे, या फिर इसको हम टेक्निकली प्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ओके, सो कॉज हम ह्यूमन कैपिटल को लेके चल रहे हैं एंड इफेक्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. Basically, human capital, okay, or the status or the level of human capital is difficult to measure. Okay, the quality or the level or the status of human capital is difficult to measure. Human capital का जो level है या quality है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा difficult है measure करने में. Okay, sometimes we can see that, or we can say that the persons who are more skilled can contribute more to the productive activities, but sometimes some productive activities are of the kind which require more physical work or physical capabilities. Okay, in that case it may create a confusion or a contradiction. Okay, हम कह रहे हैं कि जो ज़्यादा skilled हैं, ठीक है, जो ज़्यादा skilled हैं, educated हैं, वो प्रोडक्शन में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बट समटाइम्स कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं जिनमें ज़्यादा फिजिकल लेबर या फिजिकल एक्टिविटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है. इन दैट केस द पर्सन हु इज़ एजुकेटेड बट नॉट फिजिकली कैपेबल इनफ, ओके, उस केस में वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएगा. फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में हम कहते हैं, ओके, फिजिकल वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, हालांकि स्किल्ड या टेक्निकल वर्क भी उसमें इन्वॉल्व है, बट फिजिकल वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व है. इस वजह से हम कहते हैं कि दोज हु आर फिजिकली कैपेबल, ओके, फिजिकली फिट हैं, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे. ओके, सो बेसिकली ह्यूमन कैपिटल की क्वालिटी को या उसके स्टेटस को या लेवल को मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट है. ओके, हाउ वुड वी determine or conclude that this country has or have better quality of human capital than the other one? Okay, हम कुछ indicators ज़रूर use करते हैं, but moreover these indicators are not so much concrete. Okay, वो इतने ज़्यादा concrete नहीं हैं कि हम उनके ही बेस पे ये कह सकें कि जो ह्यूमन कैपिटल है उसकी क्वालिटी या उसका लेवल जो है ज़्यादा बेटर है. बिकॉज ये जो एलिमेंट्स या इंडिकेटर्स हम यूज़ कर रहे हैं ये बहुत सारे हैं और आपस में ये एक दूसरे का कॉन्ट्रैडिक्ट भी कर सकते हैं. ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक द एलिमेंट्स ऑफ और द फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के फैक्टर्स की बात करें, जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ फैसिलिटीज़ अगर हम लेके चल रहे हैं. Okay, so if we take the education, okay, if the country which is having the better educational facilities obviously may produce a better human capital or human resource. Okay, वो कंट्री जिसका एजुकेशनल फैसिलिटीज़ जो हैं बेटर हैं वो अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज प्रोड्यूस करेगी ऑब्वियसली. ओके, बट उन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को, उस एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के लेवल को या क्वालिटी को मेजर करने के लिए भी हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल अब वो इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट हो सकता है, ओके, नेट अटेंडेंस रेशो हो सकता है, ग्रोस इनरोलमेंट रेशो हो सकता है, ओके, ड्रॉप आउट रेट्स हम अगर कैलकुलेट करें तो वो हो सकती हैं. ओके, से लिटरेसी रेट. अब फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द लिटरेसी रेट as an indicator to measure the quality of educational facilities in a country. Okay, now what is literacy rate or who is called a literate? Okay, किसको हम literate कहेंगे? Literacy rate basically है क्या? So who is a literate? The one who can read and write. Okay, the one who can read and write is called literate. जो पढ़ और लिख सकता है उसको हम literate कहेंगे. Okay, so literacy rate कैसे निकलेगी? Out of the total population, वो लोग जो पढ़ और लिख सकते हैं. ओके, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन दोज हु कैन रीड एंड राइट. ओके, वहाँ से हम लिटरेसी रेट निकालेंगे. हालांकि ये थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है इसलिए हम एक सैम्पल लेके चलते हैं. ओके, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन हम 1000 पर्सनस का डेटा लिया. ओके, दैट इज़ द सैम्पल. आउट ऑफ दीज 1000 हाउ मेनी can read and write? For example, out of these 1800 can read and write, so literacy rate will be basically 800 can read and write out of total 1000 into 100. परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. So this is 80%. Okay, the literacy rate is 80%. that means 80% population. Okay, अब हमने क्या कह दिया? 80% of the population is literate.
ओके, लिटरेसी रेट से हमने फाइंड आउट किया 80% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। हालांकि हमने सिर्फ 1000 को ही स्टडी किया था, 1000 में से 800 कैन रीड एंड राइट। ओके, एंड लिटरेसी रेट हमने निकाल ली। अब पूरे पॉपुलेशन पे यही लिटरेसी रेट अप्लाई हो जाएगी। अगर पॉपुलेशन करोड्स में है, लाख में है, ठीक है, तो वहाँ पे 80% उसका निकाल लेंगे। सो दोज पर्सन और दोज मैनी पर्सन्स विल बी एबल टू रीड एंड राइट। ओके, so basically those who can read and write are literate, but mere reading and writing is sufficient to increase the productive capacity of the country? ऑब्वियसली नो। ओके, क्या सिर्फ पढ़ना लिखना ही प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज कर सकता है? वी कैन से और वी मे से नो। ओके, टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो भी डेवलप करनी पड़ेंगी। टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड की जा रही है या नहीं की जा रही है, उनको जो एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वो किस तरह की है। ओके, ऑन व्हाट बेसिस यू आर गिविंग और इम्पार्टिंग द एजुकेशन और नॉलेज टू द जनरल पब्लिक और टू योर पीपल। ओके, वेदर इट विल benefit or contribute to the production or productive capacity or not, it cannot be taken in literacy rate. Okay, literacy rate में इस चीज़ को हम कंसिडर नहीं करते कि क्या हम उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं या सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज ही उनको इम्पार्ट की जा रही हैं। ओके, कितना हम उनको टेक्निकल इंटेंसिव या स्किल्ड बना रहे हैं, ये चीज़ें हम लिटरेसी रेट से नहीं पता कर सकते। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेजर the level or the quality of human capital. Okay, human capital, basically there is a relationship between economic growth and human capital, but कितना क्लोज रिलेशनशिप है? क्या ह्यूमन कैपिटल ही अकेला इकोनॉमिक ग्रोथ का कॉज है, या ह्यूमन कैपिटल जितनी ज़्यादा बेटर होगी उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ जो है रैपिड होगा? मीन्स जिस प्रोपोर्शन में ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा उसी प्रोपोर्शन में इकोनॉमी ग्रो करेगी। हम ये चीज़ या ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट फील कर रहे हैं। ओके, अदरवाइज रिलेशनशिप तो है, बट कितना रिलेशनशिप है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप है वो हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, नहीं सेट कर पा रहे हैं। बिकॉज ह्यूमन कैपिटल का जो क्वालिटी है या जो लेवल है, इट इज़ नॉट मेजरेबल। फॉर एग्जांपल एजुकेशनल या स्किल्स के लेवल को मेजर करने के लिए हमने एजुकेशनल फैसिलिटीज़ मेजर करना शुरू की, और उन एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की क्वालिटी के लिए हमने कुछ इंडिकेटर्स लिए। फॉर एग्जांपल लिटरेसी रेट। ओके, बट लिटरेसी रेट तो सिर्फ रीडिंग एंड राइटिंग से रिलेटेड है। क्या टेक्निकल इंटेंसिव ह्यूमन कैपिटल वो क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही, हमें नहीं पता। ओके, सिमिलरली अगर दूसरा फैक्टर हम लें, हेल्थ फैक्टर। ओके, सो the more advanced or more better medical or health facilities a country will have, okay, or a country have, the more physically fit population the country will be having. Okay, जितना अच्छा या एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ या हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री का होगा, बेसिकली उतना ही फिजिकली कैपेबल पॉपुलेशन उस कंट्री की होगी। ओके, बट क्या उन हेल्थ फैसिलिटीज़ के लेवल को मेजर करने के लिए सर्टेन पैरामीटर्स हमारे पास हैं या नहीं है? जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के नहीं थे सर्टेन पैरामीटर्स कि क्या उतना स्किल्ड हम अपनी पॉपुलेशन को बना रहे हैं या नहीं, ठीक है, उसी तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ को मेजर करने के लिए वो सर्टेन पैरामीटर्स हमारे पास नहीं हैं। ओके, या नहीं हो सकते हैं मे बी। फॉर एग्जांपल हेल्थ फैसिलिटीज़ को मेजर करने के लिए हम कुछ इंडिकेटर्स लेते हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दैट मीन्स एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन। ओके, और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल 65 ईयर्स है किसी कंट्री में, तो दैट मीन्स इट इज़ अज्यूम्ड दैट कि एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर एक पर्सन मीन्स बोर्न हुआ तो ये माना जाता है, अज्यूम किया जाता है कि उस कंट्री में रहते हुए उसकी जो एवरेज एज होगी वो 65 ईयर्स, मतलब 65 साल तक तो वो जिएगा ही जिएगा। ओके, एक्सेप्ट द सर्टेन कंडीशंस, कुछ स्पेशल या सर्टेन कंडीशंस को अगर छोड़ दिया जाए, मतलब कि एवरेज है, ये एवरेज लाइफ है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी पर्सन जो है 65 ईयर्स तक ही ज़िंदा रहेंगे। ओके, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो 65 से ज़्यादा भी जी सकते हैं या कुछ पहले भी मर सकते हैं। एवरेज है ये। ओके, जस्ट एक्चुअल नहीं है। ओके, सो एवरेज लाइफ जो बताती है वो 65 ईयर्स हमें पता चली, मीन्स ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं और ना ही बहुत कम है। ओके, दैट मीन्स
ये जो पॉपुलेशन है इस कंट्री की, ओके, अगर वो एवरेज बेसिस पे लिया जाए तो उनका जो लाइफ है वो 65 ईयर्स, दैट मीन्स ये बेटर तरीके से अपनी प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट, या काफ़ी लंबे, बेटर तो नहीं कह सकते, बट फॉर ए लॉन्ग टाइम पीरियड द पॉपुलेशन कैन कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, क्योंकि 65 ईयर्स तक वो जिएगा। वही 20 से भी अगर काम करना शुरू करेगा, या 18 से भी काम करना शुरू करेगा एट द एज ऑफ 18 ईयर्स, ठीक है, तो वो 60 तक वो अगर काम करेगा, ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक वो अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कंट्रीब्यूट करेगा कंट्री के लिए, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। ओके, हमने एज तो 65 ईयर्स की, बट ये नहीं कंसीडर कर पाए या ये नहीं बता पाए क्या वो पर्सन फिजिकली फिट या हेल्दी है या नहीं है। ओके, वो 65 ईयर्स तक की एज तो होगी उसकी, लेकिन क्या वो उतना हेल्दी है कि एक्चुअल में वो प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या दूसरों के मुकाबले बेटर प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, वी कुड नॉट और वी कुडंट फिगर इट आउट। ओके, हम नहीं कर पाए पता कि क्या एक्चुअल में वो कितना प्रोड्यूस कर पाएगा, या ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ओके, सिर्फ हमने ये पता किया कि ज़्यादा लंबे समय तक वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि उसकी लाइफ इतनी है। ओके, 65 ईयर्स तक तो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाएगा, लेकिन क्या प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये नहीं पता, क्योंकि हम इकोनॉमिक ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ दैट मीन्स क्या वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा प्रोडक्शन, ये नहीं पता कर पाए हम। ओके, सो हम ये बेसिक जो टेक्निकल रिलेशनशिप है उसको हम फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। ओके, कोई पैरामीटर्स या सर्टेन इंडिकेटर्स हमारे पास नहीं है। ओके, सो वी कैन कंक्लूड दैट द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ flows in either directions. Okay, means higher income causes an increase in level of human capital. Okay, higher income causes an increase in level of human capital. That means ये कह रहा है might be इनकम बेटर है या इनकम ज़्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज या इम्प्रूव होगा। ओके, इनकम बेटर है या इनकम ज़्यादा है तो ह्यूमन कैपिटल इम्प्रूव होगा, क्योंकि इनकम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर स्पेंड किया जा पाएगा, ज़्यादा हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर खर्च करेगा, तो उसका जो स्टेटस ऑफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है या स्टेटस ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव होगा। दैट मीन्स वो बेटर क्वालिटीज़ अपने अंदर इनकलकेट कर पाएगा। ओके, इनकम ज़्यादा है तो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएगा, हेल्दी रहेगा। इनकम ज़्यादा है तो बेटर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ अवेल कर पाएगा, तो स्किल्ड होगा, मोर ही विल बी स्किल्ड। ओके, सो दैट मीन्स हायर इनकम causes an increase in level of human capital. That means जिसकी इनकम ज़्यादा है, जिस कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है, उनका ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा। ओके, बेटर होगा। ओके, ये ऐसा कह रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज सेइंग हायर लेवल ऑफ ह्यूमन कैपिटल causes growth of income. That means the country which is having better human capital will have higher income or higher national income. ओके, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक कह रहा है अगर कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है तो ही बेटर ह्यूमन कैपिटल उनके पास होगा। दूसरा कह रहा है कि अगर कंट्री के पास बेटर ह्यूमन कैपिटल है ऑलरेडी तो वो नेशनल इनकम इंक्रीज कर पाएगी कंट्री, या उसकी नेशनल इनकम हायर होगी। ओके, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जब हालांकि हम रिलेशनशिप नहीं सेटअप कर पाए कि कॉज कौन सा है। ओके, इसलिए दो रीजंस हमारे पास आए। नाउ वी डिस्कस द इंडिकेटर्स। जो हमने एजुकेशन एंड हेल्थ के लिए जो इंडिकेटर्स कुछ डिस्कस किए उन्हीं का हम डेटा यहाँ पे लेके चलते हैं। ओके, सो पर कैपिटा इनकम इज देयर, डेथ रेट, आईएमआर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट। ओके, पर कैपिटा इनकम दैट इज द मॉनेटरी इंडिकेटर। ओके, इकोनॉमिक इंडिकेटर इसको हम कह सकते हैं। ओके, डेथ रेट, IMR is infant mortality rate. Okay, infants are the children those who have not completed their age of 1 year. Okay, उन लोगों को हम या उन बच्चों को हम इन्फेंट्स कहते हैं जिन्होंने अपनी 1 साल की उम्र अभी पूरी नहीं की है। ओके, mortality rate, mortality is death. Okay, so infant mortality rate is the death rate of the children those who have not completed their age of 1 year. Okay, ये हम पहले अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़े हैं ये इंडिकेटर्स, बेसिकली 9th क्लास में हम पढ़ते हैं एंड 10th में भी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज लाइफ और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ, एंड लिटरेसी रेट हम डिस्कस कर ही लिए हैं। ओके, सो हमारे पास कुछ सर्टेन ईयर्स का डेटा है अपनी कंट्री का कि किस किस ईयर में हमारी जो इंडिकेटर्स हैं वो क्या क्या रहे हैं, उसमें इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। उस बेस पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रो हुआ है या इकोनॉमिक ग्रोथ का रेट क्या रहा है। ओके, सो पर कैपिटा इनकम
In 1991 that was 7,000. It is annual. Okay, annual है. In 1991 it was 7,321. Okay, per capita income हम निकालते हैं national income divided by population. Okay, 2001 में इंक्रीज हो गया 10,306 हो गया. 2011 में इंक्रीज हो गया 54,835 एंड 2019 में इट इज 1,35,048. ओके, डेथ रेट जो है हमारी 9.80, 8.10, 7.10 एंड 7.23. ओके, डेथ रेट जो है पर 1000 है. ओके, हज़ार में से, हर हज़ार में से इतने लोग 1991 में मर जाते थे. ओके, 9.80 एवरेज है. 0.80 जो है ये नहीं है कि भाई 0.80 कौन सा पर्सन होता है, ये एवरेज निकाला जाता है. ओके, पर 1000 जो भी हम लेंगे वो एवरेज ही निकाला जाता है. ओके, दैट मीन्स नियर अबाउट 10 पर्सन्स. ओके, 10 लोग जो है, हज़ार में से 10 लोग जो है मर जाते थे. यहाँ पे 7.23. ओके, 2011 से 2019 के बीच जो डेटा है हमारे पास, वो डेथ रेट थोड़ा इंक्रीज़ हुई है 7.10 से 7.23. ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीमेंट देखने को मिला है. माइट भी ये कुछ डिजीज़ को लेके हुआ है. ओके, IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. ओके, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने इन्फेंट्स को डिफाइन किया कि द चिल्ड्रन those who are below the age of 1 year. Okay, those who have not completed their age of 1 year are called infants. Mortality rate is death rate. That means infant mortality rate को कैसे define करेंगे? The death rate of the children those who have not completed their age of 1 year, या फिर out of the total newborn babies in a particular year, per 1000 how many of them die before completing their age of 1 year or before celebrating their first birthday. एक पर्टिकुलर ईयर में ऐसे कितने न्यूबॉर्न बेबीज हैं, ठीक है, जो अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट करने से पहले ही मर गए. ओके, सो 1991 में 80 थे, 63 2001 में, 2011 में 44 एंड 2019 में 30.92. ओके, दैट मीन्स IMR हमारा डिक्रीज होता जा रहा है. ओके, इस बेस पे हम कह सकते हैं जो डेथ रेट और IMR एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैं, ये हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ के इंडिकेटर्स हैं. ओके, सो डेथ रेट जितना ज़्यादा कम होगी, IMR जितना कम होगी, उतना ही बेटर होगी. एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितना हायर होगी, ओके, लाइफ जितना ज़्यादा लंबी होगी, उतना बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ मानी जाएंगी. ओके, सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1991 में 58.35 एंड सो ऑन 2019 तक की 69.50 चली गई. ओके, कि एवरेज बेसिस पे एक पर्सन की बर्थ के टाइम पे. ओके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और एवरेज लाइफ इज ऑलवेज मेजर्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ. ओके, वो एट बर्थ से लेके चला जाता है कि जब एक पर्सन जन्म लेता है, ठीक है, उसका जन्म हुआ, तो ये माना जाता है उस कंट्री में उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, उस कंट्री की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रेट होगी उसके अकॉर्डिंग कि उस पर्सन की एवरेज एज इतनी है. ओके, बर्थ के टाइम पे मेजर होती है ये. बाद में तो क्या पता उसको कोई कुछ क्रिटिकल डिजीजेस हो जाए, वो 30-40 में ही मर जाए, वॉट एवर, एक्सीडेंटल डेथ्स भी होती हैं. ओके, बट ये एट द टाइम ऑफ बर्थ है, एवरेज लाइफ है. ओके, एक्चुअल नहीं है. ये नहीं मानेंगे कि सभी पर्सन इतना ही साल जिएंगे, कोई ज़्यादा या कम भी हो सकता है, एवरेज है वो. ओके, लिटरेसी रेट हम डिफाइन किए ही हैं, 52, 65.20, 74.04 एंड 81.3. ओके, इसको हम बाइफरकेट फर्दर कर सकते हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट एंड मेल लिटरेसी रेट फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं. अर्बन लिटरेसी रेट एंड रूरल लिटरेसी रेट फर्दर उनको अर्बन मेल लिटरेसी, अर्बन फीमेल लिटरेसी, रूरल मेल लिटरेसी एंड रूरल फीमेल लिटरेसी. ओके, फर्दर इनको सब डिवाइड किया जा सकता है. ओके, हमारी लिटरेसी रेट जो है वो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ को इंडिकेट करती है. ओके, बेटर लिटरेसी रेट और हायर द लिटरेसी रेट, बेटर विल बी द एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन द कंट्री. सो ये कुछ इंडिकेटर्स थे जिनको हम यूज़ करते हैं अपनी ह्यूमन कैपिटल को स्टेटस को मेजर करने के लिए. Now we have the reports of two लीडिंग बैंक्स. ओके, जो दो लीडिंग बैंक्स हैं वर्ल्ड के, उनकी कुछ रिपोर्ट्स हैं. वो क्या कहती हैं? द फर्स्ट इज द रिपोर्ट ऑफ डॉयचे बैंक. ओके, जर्मन बैंक है ये. ओके, व्हाट डज द डॉयचे बैंक से? It says India will emerge as one among 4 major growth centers in the world by the year 2020. Okay, means वो कह रहा है, डॉयचे बैंक कह रहा है कि जो है इंडिया
वर्ल्ड के 4 ग्रोथ सेंटर्स में से एक होगा 2020 तक, और ये जस्ट बिकॉज ऑफ उसकी ह्यूमन कैपिटल की वजह से ही होगा। ओके, बिकॉज उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि 2020 तक, दैट मीन्स 2005 से 2020 तक इंडिया की जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें 40% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारी जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के जो इंडिकेटर्स हमने देखे उसमें एक रैपिड इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। दैट्स वाई डॉइचे बैंक इज सेइंग दैट कि हम वर्ल्ड की 4 ग्रोथ सेंटर्स में से एक होंगे। वो नंबर 2 भी हो सकता है, नंबर 3 भी हो सकता है, वट एवर इट इज़। ओके, and now the World Bank is saying, okay, what does the World Bank say? World Bank says India should make a transition to the knowledgeable economy. Okay, India should make a transition to the knowledgeable economy, and if it uses its knowledge as much as Ireland. Okay, वो कहता है कि हमें अपनी नॉलेजेबल इकोनॉमी में कुछ ट्रांजिशंस लाने होंगे। ओके, कुछ चेंजेस करने हैं थोड़े से। ओके, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक मानता है ओके कि इंडिया में उतना पोटेंशियल है, इंडियन पीपल में उतना पोटेंशियल है, दे कैन डू दैट। ओके, इफ it uses its knowledge as much as Ireland, then the per capita income will increase from $1,000 in 2002 टू $3,000 इन 2020। ओके, सो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,000 जो कि 2002 में ऑब्जर्व की गई उससे इंक्रीज होकर $3,000 हो जाएगी 2020 तक। दैट मीन्स पोटेंशियल, द वर्ल्ड बैंक इज टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल ओके ऑफ द वर्कर्स और द पीपल ऑफ द कंट्री। ओके, दैट मीन्स वर्ल्ड बैंक मानता है कि इंडिया में जो है स्किल्ड वर्कर्स का प्रोपोर्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, उनकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, एंड हमें उस एफिशिएंसी को ट्रिगर अप या फिर कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करने की ज़रूरत है, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर प्रोडक्शन। एज अ रिजल्ट इनकम विल इंक्रीज। ओके।